हाँ, in the last class someone is asking about the answer of this question. कौन पूछ रहे थे, जरा बताएंगे? एरिया और आंसर के बारे में बात कर रहे थे वो। सर मैंने पूछा था सर। खैर जो भी हो तो आप नोट कर लें। एरिया इज जो आपको सॉल्यूशन के बाद इसका एरिया मिलेगा ना बोल्ट का, so that area will be 401.45 and the answer of the bolt size is M30. Okay, M30 means 30 millimeter is the nominal diameter. Okay. So we were here. तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको two circular plates with 2D and D as the outer and inner diameters. So this is the first plate, this is the second plate. So both are having inner diameter D and outer diameter 2D. Okay. So the area of contact between them will be this one. This is the area of contact. So you can find this area. So A equal to 5/4 2D square minus D square. This is the area for the contact area between the plates. And this is basically the top view. This is the front view. So this is the diameter D. This is the diameter 2D. So outer diameter is AB and inner diameter is CD. So AB is the outer diameter of the plates and CD is the inner diameter of the plates. So in the top view, the view will be somewhat like this. So they are connected with the means of a bolt. And the bolt is made of plain carbon steel, SYT and Young's modulus given. Young's modulus given means आप समझ जाइए ये इलास्टिक एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है इलास्टिक एनालिसिस। अच्छा, इलास्टिक एनालिसिस का क्यों है? क्योंकि देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा इक्वल टू होता है PL डिवाइड बाई AE। ये आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ। Delta equal to PL divided by AE. E is the Young's modulus. So from here you can find P by delta is AE divided by L. This P by delta is nothing. It is the stiffness. Stiffness is given by force per unit deflection. So P is the force, delta is the deflection. So it is force per unit deflection. It is represented by stiffness K. So this is given by AE by L. तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि हमें कभी भी स्टिफनेस कैलकुलेट करनी होगी, चाहे प्लेट की, चाहे बोल्ट की, चाहे किसी भी एलिमेंट की, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं AE डिवाइड बाई L, where A is the contact area, E is the Young's modulus, L is the length of the plate or the length of the bolt. So in this question there are two plates. There are two plates, so we need the stiffness of the plates, stiffness of the plates combined together, and we need the stiffness of the bolt. Elastic analysis means the concept of stiffness is involved. So Young's modulus is given, that's why this is the Young's modulus for the bolt. While the plates are made of aluminum and the Young's modulus is 71,000. So plate material is aluminum, bolt material is plain carbon steel. Young's modulus for aluminum is 71,000 megapascal, and for plain carbon steel it is 207,000 megapascal. The initial preload in the bolt is 5 kilonewton. Initial preload means you can say it is PI or you can say P1. It is 5 kilonewton given. And the external force acting on the bolted joint is 10 kilonewton. External force is also given. P2 is 10 kilonewton. Determine the size of the bolt if the factor of safety is 2.5. ठीक है, तो अब मैं जरा सा इसको बस ये फॉर्मूले याद रखिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। वन फॉर्मूला इज दिस वन इज इंपॉर्टेंट, K इक्वल टू AE बाई L, है ना, K इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई L। जरा सा मैं अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखिएगा। तो देखिए जब बोल्ट पर इनिशियल प्रीलोड भी आता है और एक्सटर्नल फोर्स भी आता है, जब बोल्ट पर
P1 is the initial force due to tightening. It is the tightening force. P1 is the tightening force. P2 is the external force. तो बोल्ट पे एक्ट करने वाला इक्विवेलेंट फोर्स जो होता है, इक्विवेलेंट फोर्स ऑन द बोल्ट is given by P equal to P1 plus KP2. P equal to P1 plus KP2. Here K is a constant, and this constant is given by 1 upon 1 plus A. This constant is given by 1 upon 1 plus A, where A is the ratio of the stiffness of the plates divided by the stiffness of the bolt. A is the ratio of the stiffness of the plate divided by stiffness of the bolt. Correct? तो यहां से हमें करना क्या रहता है इलास्टिक एनालिसिस में, हमें इक्विवेलेंट फोर्स निकालना है. अब इक्विवेलेंट फोर्स निकालने के लिए हमें दोनों फोर्स चाहिए, P1 भी चाहिए, P2 भी चाहिए. क्वेश्चन में दे रखे हैं, है ना. P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताइए क्वेश्चन देख के. इनिशियल प्रीलोड इन द बोल्ट इज 5 किलो न्यूटन. तो P1 की वैल्यू तो हमको 5 दे रखी है. P1 is 5 kilonewtons and P2 is also given. P2 is 10. Only the remaining part is K. So K is given by 1 upon 1 plus A. A is given by Kc by Kp. Now, what is Kc? It is AE divided by L whole divided by Kb. It is again AE divided by L. Kc is for plates and Kb is for bolt. So I am putting the suffix here AC, EC, LC. Similarly, AB, EB, LB. So these suffix represent C for plates and B for bolt. So A equal to AC, AE by L divided by AE by L. एक तरह से ये समझिए सीधा सीधा. ठीक है. अब इस पार्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं? A equal to AC. What is the area of the plates? So area of the plates is pi by 4 2d square minus d square. ये मैंने अभी निकाल के बताया था. This is the area. This is the contact area between the plates. So it is pi by 4. Outer diameter is 2d. Inner diameter is d. So it is pi by 4 2d square minus d square into Young's modulus. What is the Young's modulus for the plates? Plates are made of aluminum, and the Young's modulus for the aluminum is given 71,000. It is given 71,000. So I am just multiplying by 71,000. Clear? Divided by LC. What is the LC? LC means what is the length of the plates, of thickness of the plates. So this length is 25 plus 25. Diagram देखिए. 25 is the thickness of the first plate. 25 is the thickness of the second plate. So this is due to the force, external force. This length is under tension. So you can say the total length is 50. So here LC is 50. So I think this numerator part is over. Whole divided by now AB. AB is the area of the bolt. So what is the area of the bolt? Anyone can tell? Area of the bolt is given by pi by 4 D square. DC square. है ना? If you are considering the core diameter, then it is DC square, and you are considering nominal diameter, then it is only pi by 4 D square. So let pi by 4 D square. I am considering the shank is not having threads, so it is pi by 4 D square. Now this is the area. Area multiplied by Young's modulus. Young's modulus of the bolt is how much? 2,07,000. So multiply 2,07,000 divided by LB. What is the length of the bolt? बताइए, what is the length of the bolt? Again 50. It is again 50. So 50 cancel out. These 3 zeros cancel out with these 3 zeros. Pi by 4 cancel out. So what is the remaining part? The remaining part is 4d square minus d square is 3d square whole divided by only d square
multiplied by 71 divided by 207. 71 divided by 207. Now d square cancel out. So you are having 3 into 71 divided by 207. जरा solve कर दीजिए कितना आ रहा है? 3 into 71 divided by 207. How much it is coming? सर एलसी कैसे आए? 1.028 आ रहा है ना? तो एलसी कैसे आए? 1.028 LC. LC ये देखिए, this is the first plate length, this is the second plate length or thickness. So what is this? Is 25 mm given, 25 mm given. So total length is 25 plus 25. So that's why LC is 25. तो प्लेट का लेंथ भी 25 है और बोल्ट का लेंथ भी 25 है, करेक्ट? So LC and LV are cancelling each other. They both are 50. So A is coming 1.028. तो हमें देखो अब A मिल गया. A क्या कहलाता है? A को बोलते हैं रेशियो ऑफ स्टिफनेस. ध्यान रखिएगा, A is known as रेशियो ऑफ द स्टिफनेस. तो A की वैल्यू निकल गई, राइट? अब मैं जरा सा इसकी इंक क्लियर कर लेता हूं. तो देखिए, रेशियो ऑफ द स्टिफनेस इज A equal to 1.028. That's why K equal to 1/1 plus A, है ना? And P equal to P1 plus KP2. P1 is how much? 5 kilonewton. K कितना हो गया? 1/1 plus A. A is 1.028 multiplied by P2. P2 is 10. जरा solve करिए. 9.928. How much? 9.928. 9.928. मैं सही लिख रहा हूं? 9.928 kilonewton. So this is the effective force on the bolt. So this P is the effective force coming on bolt. तो समझाने का मेरा कंसेप्ट ये है कि जब बोल्ट पर टाइटनिंग फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो इफेक्टिव फोर्स ऐसे दिया जाता है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है. इस फॉर्मूले को याद रखिए, है ना? और टाइटनिंग फोर्स यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है 5 किलोन्यूटन. यदि ये डायरेक्ट ना दिया हो तो टाइटनिंग फोर्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं 2840D. ठीक है, 2840D. तो ये मेरा 9.928 किलोन्यूटन क्या आ गया? इफेक्टिव फोर्स आ गया. यदि मैं इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया 9928 न्यूटन. अब फोर्स क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस. अब स्ट्रेस कौन सा होगा? टेंसाइल या शियर? टेंसाइल स्ट्रेस ही होगा, है ना? इस फोर्स की, इफेक्टिव फोर्स की वजह से इसमें क्या आएगा? बोल्ट में टेंशन आएगी. अब P की वैल्यू कितनी है? 9928. एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा T. एरिया को क्या ले सकते हैं? π/4 d², है ना? π/4 d² or dc² whatever it is into sigma T. What is sigma T? 380 is the tensile strength and factor of safety is 2.5. So sigma T is given by 380 divided by 2.5. So only unknown is D. So you can find D, है ना? D or DC, whatever it is. If it is DC, then you can find D equal to DC by 0.8. Then you can find the nominal size. M12 is the answer. ठीक है? अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जरा बताइए. सर हाँ बोलिए. सर एरिया में डीसी आएगा, डी आएगा? कहाँ पर? एरिया में सर. देखो, यदि आपके बोल्ट में पूरे में थ्रेड्स हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट थ्रेड हैं, तब तो आपका डीसी आएगा. यस सर, यस सर. है ना? और डीसी आपको यदि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन है तो आप डीसी लेके चलिए. अच्छा, जब भी आप इस कैलकुलेशन को करें, डीसी लेके चलिए, डीसी से डी निकालिए और डी से आप डाटा बुक देख लीजिए, आपको M12 मिल जाएगा. ठीक है? तो आज अभी हमने कुछ नए फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना? कुछ नए फॉर्मूले पढ़े हैं. उन फॉर्मूलों को एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, है ना? इन फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे तो इलास्टिक एनालिसिस आराम से कर पाएंगे. सर एरिया 65.31 आ रहा है क्या सर? बोलिए. अगर इसी केस में इफेक्टिव स्टिफनेस पूछता तो उसको कैसे लेते हैं? इफेक्टिव स्टिफनेस पूछता तो कैसे लेते हैं? यस सर. तो बहुत आसान है. आपने अरेंजमेंट पढ़े हैं ना? देखो मैं बताता हूँ आपको. एक बार फिर से बता दीजिए, भूल गए. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ. मैं जरा सा इसको पहले क्लियर कर. देखो, आपने स्प्रिंग पढ़ी है ना? मान लो सीरीज सिस्टम होता है K1 K2. तो हाँ, है ना? अब
मान लीजिए ये वाली प्लेट की स्टिफनेस K1 है, इस वाली प्लेट की स्टिफनेस K2 है, कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो और आपसे कंबाइंड स्टिफनेस चाहिए, तो कंबाइंड स्टिफनेस सीरीज में कैसे निकालते हैं? 1/k इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 से, और यदि पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 से। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं AE/L स्टिफनेस के लिए, P बाई डेल्टा जो अभी आया है, वो इन दोनों प्लेटों में हमने टोटल लेंथ ली है 25, दैट्स व्हाई इट इज द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, तो स्टिफनेस निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला AE/L है, और यदि आपको अलग अलग स्टिफनेस दे रखी हो क्वेश्चन में, देन यू कैन यूज द सीरीज सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी इलास्टिक एनालिसिस पर, है ना। ये बोल्टेड असेंबली, एरिया बता दीजिए एरिया किसका बताऊं, बताइए सर। सर 65.31 आ रहा है सर, 31 जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? 65.31 आ रहा है सर, उसका मतलब एरिया कंफर्म बता दीजिए सर। हाँ, 65.31 इज राइट, है ना। उससे आप डीसी निकालिए और π/4 DC स्क्वायर, और डीसी से वो निकाल लीजिए डी, सही है आपका 64.31 ही आ रहा है, इट इज राइट, है ना। अब देखिए, ए बोल्टेड असेंबली ऑफ टू कंपोनेंट्स इज शोन इन फिगर, नट इज टाइटन्ड बाय मींस ऑफ ए स्पैनर सो एज टू प्रीलोड ऑफ 2.5। तो बताओ ये 2.5 कौन सी वैल्यू है, P1 है या P2 है? P1 है सर। P1, तो P1 हमें दिया हुआ है, P इक्वल टू होता है P1 प्लस KP2, ये याद रखिए। अब P1 हमें 2.5 दे रखा है, द एक्सटर्नल फोर्स P एक्टिंग ऑन द असेंबली इज 5, ये 5 कौन सी वैल्यू है? एक्सटर्नल, मतलब P2। ठीक है, और 1/1 प्लस A, ये K की वैल्यू होती है, और A क्या होता है? KC/K। The bolt with coarse threads is made of plain carbon steel 30C8 SYT this much, factor of safety this much, है ना। The effective stiffness of the parts held together by the bolt is 2.5 times the stiffness of the bolt। बताओ इस लाइन से क्या समझे आप? The effective stiffness of the parts held together, है ना, जैसे दोनों प्लेटें held together by the bolt is 2.5 times the stiffness of the bolt। इसका मतलब KC equal to 2.5 KB दे रखा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि KC की वैल्यू KB से 2.5 टाइम्स है। ठीक है, तो KC को हम लिख सकते हैं 2.5 KB डिवाइडेड बाय KB, KB कैंसिल आउट, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। अब आपको ये बड़ी आसानी, हाँ, के ये आपको बड़ी, ये अलग होता है ना, यहाँ पे के इफेक्टिव लेंगे ना सर, तो हाँ इफेक्टिव ही लिया है क्वेश्चन में, इफेक्टिव दे रखा है डायरेक्ट ना, इफेक्टिव स्टिफनेस ऑफ द पार्ट्स हेल्ड टुगेदर, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी KC है, इफेक्टिव स्टिफनेस ऑफ द पार्ट्स हेल्ड टुगेदर बाय द बोल्ट इज 2.5 टाइम्स द स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो KC की वैल्यू KB से 2.5 टाइम्स है, और A जो होता है वो रेशियो होता है, तो इट इज 2.5। अब यहाँ पे A की जगह हम 2.5 लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 2.5 इंटू 5 प्लस 2.5। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बोल्ट का इफेक्टिव फोर्स निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? D इक्वल टू 9.89 6.989 आएगा इस वाले क्वेश्चन में 6.98 आ रहा है, 6.98 सही है, और 6.98 के बाद वो M8 हो जाएगा, है ना, और एरिया 24.55 आ रहा है। ठीक है, और फोर्स आ रहा है 3.928, इसको सॉल्व करोगे तो 3.928 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3.928 को न्यूटन में बदल लेना, 3928, और फोर्स इक्वल टू होता है एरिया मतलब π/4 DC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा टी। सिग्मा टी कैसे निकालोगे? 400 दे रखा है SYT, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, सो इट इज 400 डिवाइड बाय 2.5। तो यहाँ से DC आपको मिल जाएगा 5.59, DC के बाद D आपको मिल जाएगा DC बाई 0.8, तो वो 6.98, आपका सही आंसर 6.98। फिर डाटा बुक से जब देखेंगे तो M8 इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इलास्टिक एनालिसिस, बस P इक्वल टू P1 प्लस KP2 और K इक्वल टू 1/1 प्लस A, ये याद रखना। और P1 यदि कभी क्वेश्चन में ना हो तो P1 के लिए जनरल फॉर्मूला 2840D, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चलिए
सिलेबस इज फिनिश्ड, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द प्रैक्टिस, है ना। जैसे अभी हमने आई वोल्ट वाला एक क्वेश्चन किया था, तो उसी वहां पे हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को उठा रहे थे, यहाँ पे गियर बॉक्स को उठाया जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिएगा। ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं, है ना, तो ये बताओ इसेंट्रिक लोडिंग है या इसेंट्रिक लोडिंग नहीं है? इसेंट्रिक है। ये इसेंट्रिक सर, है। है। इसेंट्रिक में 2 तरह के केस होते हैं, एक शियर वाले और एक शियर और टेंसाइल मिलाने मिल के होने वाले। तो ये कौन सा वाला है? शेयर वाला है। ये शियर वाला। इसमें प्राइमरी शियर निकलेगा, फिर सेकेंडरी शियर निकलेगा, फिर रिजल्टेंट शियर निकलेगा, फिर हेवीली लोडेड बोल्ट निकलेगा, फिर उसमें डीसी आएगा, डीसी से डी आएगा, डी से एम, उसका सिमेट्रिक थ्रेड का साइज पता लगेगा। सर जिसमें एरिया लेंगे लास्ट में वो डीसी वाला लेंगे ना? डीसी स्क्वायर 5/4 डीसी स्क्वायर। आप थ्रेडिंग मान के चलिए पूरे में, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, तो आप ये मान लीजिए कि पूरे बोल्ट में थ्रेडिंग है, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारा इसेंट्रिक लोडिंग इन शियर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। एक क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस के लिए, इसे कर लीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लीजिएगा, बहुत आसान है। देखो प्राइमरी तो डाउनवर्ड 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 आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ये R1 का परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज, ये R2 का परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज, ये R4 का परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज, ये R3 का परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज। बन गया फ्री बॉडी। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट काम होता है, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस में। बताओ ये भी इसेंट्रिक लोडिंग का केस है ना? यस सर। तो इसमें इस तरह का भी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया है, तो ये प्रैक्टिस के लिए। इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको शियर निकालना पड़ेगा, है ना, शियर स्ट्रेस। उसके बाद आपको टेंसाइल स्ट्रेस। जब शियर और टेंसाइल दोनों लगते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट शियर। क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट शियर। और रिजल्टेंट शियर के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? अंडररूट सिग्मा T/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरी है? MSST, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सर क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करनी, तो फिर क्या करेंगे? यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा है देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन बाय द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, है ना। रीजन ये है कि बोल्ट्स आर जनरली मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। देखो स्टील 40 ये डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए शियर स्ट्रेस थ्योरी गुड रिजल्ट्स देती है। लेकिन यदि क्वेश्चन मेंशन्ड है प्रिंसिपल स्ट्रेस, डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो फिर आपको अब इसे प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से ही करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, सिग्मा T/2 अंडररूट सिग्मा T/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये जुड़ जाता है, ये फर्क है बस। तो इसमें L2 और L1 कौन कौन सी होंगी? टिल्टिंग पॉइंट से ये टिल्टिंग पॉइंट C, तो यदि आप ये वाली डिस्टेंस 75 है तो LB तो हो जाएगा 75 और LA हो जाएगा 375, 75 प्लस 300। ये जो ऊपर वाली 75 इसका यूज नहीं है ना? ऊपर वाले 75 का कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज, है ना। ओके सर। वो क्वेश्चन में दिया, देने दो, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपकी 250 है। अब इस ये रो है, रो नंबर A, रो नंबर B। अब इस रो में जितने भी बोल्ट होंगे 1 2 3 4 जितने भी होंगे उन सब के लिए डिस्टेंस 375 होगी, और वो सारे के सारे इक्वली हेवीली लोडेड होंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग कर लीजिएगा। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि प्रैक्टिस में था पर मैं इसे कराऊंगा अभी आपको। तो इसको देखिए जरा, ए स्टीम इंजन सिलेंडर हैज एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 250 mm। सिलेंडर का डायमीटर 250 है, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखा दूं आपको पहले। तो देखो सिलेंडर में क्या रहता है, ये सिलेंडर है मान लीजिए, तो सिलेंडर के ऊपर ये सिलेंडर कवर रहता है ना। कवर में क्या लगे रहते हैं? स्टड लगे रहते हैं या बोल्ट लगे रहते हैं। बोल्ट भी यूज हो सकते हैं, स्टड भी यूज हो सकते हैं। तो ये बोल्ट है, तो बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट का सेंटर, ये डायमीटर कहलाता है पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और ये सिलेंडर का डायमीटर है D, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर कौन फ्यूल बर्न होता है? फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर है, तो P मैक्सिमम प्रेशर क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, तो P मैक्सिमम तो प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? 5/4 D स्क्वायर। D क्या है? सिलेंडर का डायमीटर। तो ये टोटल फोर्स हो गया,
तो हमने टोटल फोर्स इन दी सिलेंडर के अंदर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर इनटू एरिया से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, तो इसमें आप कंसेप्ट समझ लो कि सिलेंडर के अंदर पहले फोर्स निकालिए, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब इस फोर्स को कौन रजिस्ट कर रहा है, कौन बियर कर रहा है ना। असेंबली में क्या यूज किए गए, स्टड, तो इस फोर्स को रजिस्ट कौन कर रहा है, स्टड रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप टॉप व्यू देखेंगे मान लीजिए, तो टॉप व्यू इसका सिलेंडर का असेंबली का कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इसमें जगह जगह स्टड लगे होंगे, है ना। मान लीजिए एक स्टड यहाँ लगा हुआ है, दिस इज फर्स्ट स्टड, है ना। एक स्टड यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 स्टड लगे हुए हैं, कितने भी स्टड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप व्यू में आपको पूरे स्टड दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको केवल स्टड की रो दिखाई दे रही है एक तरह से, है ना, फ्रंट व्यू में। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टड का एरिया कितना है, π/4 dc स्क्वायर, dc इज द कोर डायमीटर ऑफ द स्टड, एक स्टड का एरिया π/4 d स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ स्टड्स कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल एरिया हो गया। तो देखिए मैंने किया टोटल एरिया π/4 dc स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n। अब इन स्टड में कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है बताओ, टेंसाइल या शियर, फोर्स की वजह से टेंसाइल, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा टी से, तो ये भी फोर्स हो गया, ये रजिस्टिव फोर्स हो गया प्रोड्यूस बाय स्टड्स। यदि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज हमारी असेंबली फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, जनरली फोर्स को इक्विवेलेंट कर देते हैं। एक तो वो फोर्स जो सिलेंडर में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक वो फोर्स जो स्टड के द्वारा रजिस्टिव फोर्स, और इसमें से कोई एक वैल्यू अननोन होती है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 250, तो ये 250 कौन सा डायमीटर है बताओ, सिलेंडर का डायमीटर है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम स्टीम प्रेशर, तो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू 1.5 है। ठीक है, तो डायमीटर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है, तो चलो वैल्यू रख देते हैं। प्रेशर 1.5 है, π/4, डायमीटर 250 है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड में आते हैं। द सिलेंडर कवर इज फिक्स्ड टू द सिलेंडर फ्लैंज बाय मींस ऑफ 12 स्टड्स, कितने स्टड यूज किए गए हैं, 12। द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड इज 400, पिच सर्किल डायमीटर वही होता है, पिच सर्किल डायमीटर डीपी, तो डीपी की वैल्यू 400 है। ठीक है, यहाँ सेंटर से लेके मतलब इस सर्किल का जो डायमीटर है वो 400 mm है, पिच सर्किल डायमीटर, करेक्ट। अब द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्टड इज लिमिटेड टू 30, तो ये सिग्मा टी की वैल्यू है कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्मा टी। डिटरमिन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्टड्स इफ डीसी इक्वल टू 0.84 डी, हम जनरली डीसी इक्वल टू 0.8 डी करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 0.84 डी दिया है, तो फिर अब हमें यही यूज करना है, हमें अब पुराना वाला इक्वेशन नहीं यूज करना है, इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉमिनल डायमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो π/4, डीसी तो अननोन है, कितने स्टड है हमारे केस में 12, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, सो इट इज 30। बताओ इस पूरी इक्वेशन में कितने अननोन है, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, ओनली वन अननोन, डीसी इज अननोन, तो डीसी निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है डीसी, तो डीसी आ रहा है 16.13, मेरे पास कैलकुलेटेड है, आप मिला लेना। यस सर, 16.137, करेक्ट। सो डी इक्वल टू डीसी बाई 0.84 लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 16.13 डिवाइडेड बाई 0.84, डी कितना आ गया 19.21। वेरी गुड। अब इसको हम डाटा बुक से वो करेंगे कंपेयर, तो हमको एम साइज मिल जाएगा, M20 है ना, जो भी होगा वो हमको वहां से मिल जाएगा। तो चलो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ द सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशियल पिच ऑफ द स्टड्स, इज इट सैटिस्फैक्टरी। तो देखो स्टड कितनी कितनी दूर पे लगे हुए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, स्टड्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखो एक स्टड यहाँ लगा है, दूसरा स्टड यहाँ लगा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पिच है ना, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्टड्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होती है, पाई इंटू डीपी, डीपी हमारा पिच सर्किल डायमीटर है,
तो टोटल सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टड्स इक्वल टू पिच, ये हमारी पिच निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, पाई इंटू डीपी है 400 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करिए कितना आ रहा है पिच। पिच होती है सरकमफरेंस बाई नंबर ऑफ स्टड्स। पिच का फॉर्मूला है 104.71। वेरी गुड, 104.71। सो सेकंड पार्ट इज कंप्लीट। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द सरकमफरेंशियल पिच। पिच निकाल दी। अब एक पार्ट और है कि इज इट सेटिस्फैक्टरी, क्या ये सेटिस्फैक्टरी है। तो एक इसमें इंपेरिकल रूल है कि जो पिच है वो 5D से 10D के बीच में होनी चाहिए, तो हमारी स्टीम वगैरह उसमें से लीकेज नहीं करेगी, लीकेज की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो पिच जो है वो 5D से 10D के बीच में होनी चाहिए। तो जरा चेक कर लो कि हमारी पिच कितनी आई है, 104.72 आई है। तो क्या ये वैल्यू 5D और 10D के बीच में है। अब D हमारा कितना आया है, स्टड का डायमीटर 19.21 आया है। यस सर है। चलो इसको 20 मान लेते हैं। तो 20 पंजे 100, 5D की वैल्यू हो गई 100 और 20 धाम 200। तो 100 और 200 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ। 100 और 200 के बीच में लाई कर रही है पिच, यस और नो। यस सर। यस सर। दैट्स व्हाई इट इज सेटिस्फैक्टरी। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सर ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर कमिंग टू रिवीजन। हाँ सर एक बोलिए। डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर स्टड की जगह बोल्ट होता तब भी ऐसे करते। हाँ सेम प्रोसीजर। मान लो 12 स्टड की जगह 12 बोल्ट होते तब भी सेम प्रोसीजर होती। π/4 DC स्क्वायर ही उसका एरिया होता, नो चेंज, ठीक है। स्क्रू हो, स्टड हो, बोल्ट हो, सिमेट्री होती है सॉल्यूशन में। सर स्टड एक्चुअली होता क्या सर, वो क्लियर नहीं हो पा रहा सर। स्टड में हेड नहीं होता, बस दोनों तरफ बोल्ट होते हैं, ऊपर भी बोल्ट नीचे भी बोल्ट, पूरे में थ्रेडिंग रहती है। और बोल्ट में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ बोल्ट कसा जाता है। स्टड में दोनों तरफ बोल्ट कसे जाते हैं। ओके सर, ठीक है। यस सर। तो अब हम आगे रिवीजन पे, है ना। बस 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद क्विज करेंगे, स्विंग कंप्लीट हो जाएगा। क्विज में ये आइडिया दे देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे और चेक बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। तो देखिए रिवेट के अंदर एक चीज होती है कॉकिंग एंड फुलरिंग। तो देखो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये रिवेट की रो लगी हुई है ना। तो यहां से मान लीजिए इसके अंदर कोई स्टीम वगैरह है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसके इन जॉइंट से लीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इन जॉइंट से लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम क्या करते हैं, कॉकिंग टूल की हेल्प से ब्लंट कर देते हैं इन पोर्शंस को, है ना, ब्लंट कर देते हैं। तो ये पेंसिल टाइप में कॉकिंग टूल होता है, और कॉकिंग टूल जो है 6 मिलीमीटर थिकनेस से टी की वैल्यू कम हो तभी अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो देखो, ये जैसे प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, तो प्लेट को 75 डिग्री के एंगल पर, तो ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है। तो 70 से 75 है ना, फिक्स वैल्यू नहीं है, रेंज है। 70 से 75 डिग्री पे पहले बिवेल करते हैं, और बिवेल करने के बाद कॉकिंग टूल की हेल्प से इसको ब्लंट कर देते हैं। तो ये हमारा लीकेज रुक जाता है। लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए मेथड होती है, ये दोनों ही मेथड लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए होती है। सो दिस इज कॉकिंग मेथड एंड सेकंड वन इज फुलरिंग मेथड। फुलरिंग मेथड में जो हमारा फुलरिंग मेथड की थिकनेस होती है उसमें भी 75 का एंगल बनाते हैं, लेकिन फुलरिंग टूल की जो थिकनेस होती है वो प्लेट थिकनेस के बराबर होती है ना। फुलरिंग टूल की जो थिकनेस होती है वो प्लेट थिकनेस के बराबर होती है, और यहाँ पर कॉकिंग टूल की जो थिकनेस है वो पिन पॉइंटेड होती है ना। तो इसको लेस देन 6 मिलीमीटर पे यूज करते हैं, और यदि टी की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो हम फुलरिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर पूछते हैं व्हाट इज कॉकिंग एंड फुलरिंग इंटरव्यूज में। सो दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द जॉइंट लीक प्रूफ, और एंगल याद रहना चाहिए 70 to 75 डिग्री, क्लियर। अब देखिए एक और रिवीजन, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फॉर द फ्लैट प्लेट विथ इलिप्टिकल होल। तो देखिए इलिप्टिकल होल है, अब इस इलिप्टिकल होल का मेजर एक्सिस कितना है बताओ जरा। 2A। मेजर एक्सिस 2A और माइनर एक्सिस कितना है 2B, ठीक है। अब ये फोर्स आ रहा है इस पे, तो जब किसी प्लेट में होल होता है तो होल की वजह से क्या होगा,
जो फ्लो लाइंस हैं वो बेंड हो जाएंगी, तो बेंड होने की वजह से उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है ये डाटा बुक से ही उठाया है मैंने, ये डाटा बुक में दिया हुआ है 1 + 2 × A/B। अब यहाँ पे A क्या है, मेजर एक्सिस का हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ, इट इज द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड व्हाट इज B, इट इज द हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। सो 1 + 2 A/B, ठीक है। मान लीजिए 2A की वैल्यू 10 दे रखी है, 2B की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन देखिए, फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो परपेंडिकुलर, ये जो A डायमेंशन है ये परपेंडिकुलर टू द फोर्स है, ध्यान रखिएगा। A डायमेंशन जो ली जाती है फॉर्मूले में परपेंडिकुलर टू द फोर्स, और B डायमेंशन ली जाती है इन द लाइन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जरा मुझे बता सकते हैं KT की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 2A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, = 5, 2A = 10 means A = 5, divided by 2B = 6 means B = 3, so it is 4.33. हाँ राइट, सो इट इज 1 + 10/3, सो इट इज 4.33। तो इस केस में KT की जो वैल्यू है वो 4.33 हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें थोड़ी सी और बात समझाने की है कि हमारा फॉर्मूला है 1 + 2A/B, ठीक है। मान लीजिए B को हम छोटा करता जाएं, जो माइनर एक्सिस है उसको हम क्या करें, स्मॉल करते जाएं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जाके B जो है कितना हो जाएगा, 0। हमने B को इतना स्मॉल कर दिया कि वो लगभग 0 है। तो जैसे ये 0 होगा तो ये वाला पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ये पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट +1 वो भी इनफाइनाइट ही होगा, तो KT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यदि हमारा माइनर एक्सिस स्मॉल हो गया, मतलब B की वैल्यू यदि 0 हो गई है ना, तो वो क्रैक, स्मॉल क्रैक जो है वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाता है, प्लेट के फेल्योर होने के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक और इसमें बात, यदि मान लीजिए माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के बराबर हो, यदि माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के इक्वल हो, तो ये इलिप्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, है ना। सर्किल का जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब A = B हो जाएगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A/B होती है। A और B आपस में इक्वल है, तो दे विल कैंसिल आउट, सो 1 + 2 = 3। तो ये भी कभी पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर ए सर्किल। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू सर्किल के लिए 3 होती है, करेक्ट। ये रिवीजन हो गया। ये टेबल या PPT में आपको भेज दूंगा, तो ये जरा पढ़ लेना कि एडवांटेजेस ऑफ द रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट में क्या एडवांटेजेस हैं। तो इधर लेफ्ट साइड वाला कॉलम रिवेटेड के लिए है, राइट साइड वाला कॉलम वेल्डेड के लिए है, ठीक है। तो रिवेटेड जॉइंट जो है वो मोर रिलायबल होते हैं अंडर वाइब्रेशन एंड इंपैक्ट फोर्सेस, ठीक है। वाइब्रेशन और इंपैक्ट फोर्सेस में रिवेटेड जॉइंट्स आर मोर रिलायबल, वेल्डेड जॉइंट्स आर लेस रिलायबल। Riveted joints can be used for the ferrous and non-ferrous both materials, but welded joints are restricted to steel plates only, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में एडवांटेजेस हैं, इधर डिसएडवांटेजेस। अब ये डिसएडवांटेज, रिवेट के भी डिसएडवांटेज हैं कि मोर मटेरियल कॉस्ट, और वेल्डेड जॉइंट में लेस मटेरियल कॉस्ट आती है, क्योंकि ड्रिलिंग होती है, होल्स होते हैं, होल्स की वजह से ज्यादा प्लेट थिकनेस चाहिए, है ना, स्ट्रेस को बियर करने के लिए। तो ज्यादा प्लेट थिकनेस चाहिए, इसका मतलब ज्यादा कॉस्ट चाहिए, ठीक है। और ये देखने में आया है कि किसी स्ट्रक्चर में जितने रिवेट लगते हैं, तो रिवेट का टोटल वेट 4% के आसपास हो जाता है, टोटल स्ट्रक्चर का 4% वेट रिवेट का ही होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हैवी हो जाती है, और वेल्डेड मटेरियल की जो वैल्यू है वो केवल 1.5% से ज्यादा नहीं आती है। तो वेल्डेड जॉइंट लाइट वेट होते हैं, रिवेटेड जॉइंट हेवीली वेटेड होते हैं, है ना। तो ये टेबल भी आप पढ़ लेना, PPT आपको मैं भेज दूंगा। एक हल्का सा लास्ट कंपैरिजन है, लैप और बट जॉइंट में कौन सा जॉइंट बेस्ट होता है, बताओ। मतलब एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं। तो देखो, लैप जॉइंट कॉस्टली नहीं होते हैं, वो चीप होते हैं, और बट जॉइंट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। क्यों होते हैं कॉस्टली बट जॉइंट, क्योंकि बट जॉइंट में कवर प्लेट की जरूरत पड़ती है ना।
तो देखो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रैप, लैप जॉइंट में किसी स्ट्रैप की जरूरत नहीं है, और इसमें स्ट्रैप की जरूरत होने के कारण इसकी कॉस्ट मोर होती है। तो एक तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लैप जॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर जाता है। कैसे कर जाता है? देखो, एक प्लेट ये होती है, दूसरी प्लेट ये होती है, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है। अब इन दोनों फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए, क्या वो एक दूसरे से अलाइंड है? उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी। तो ये फोर्स और ये फोर्स, अब ये दोनों फोर्स मिलकर के कपल बनाते हैं, है ना, कपल बनाते हैं। कपल का कुछ बेंडिंग मूवमेंट होता है, तो बेंडिंग मूवमेंट होने की वजह से ये जॉइंट वो हो जाता है, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। मतलब ये प्लेटें कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, है ना, यहाँ पे स्ट्रेट है, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये लैप जॉइंट का डिसएडवांटेज है, इसमें रैपिंग और डिस्टॉर्शन हो जाता है, लेकिन बट जॉइंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये टेबल भी आप थोड़ा समझ लेना। रिवेट मटेरियल्स माइल्ड स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का कब बनाते हैं? जब कोरोजिव एटमॉस्फेयर हो, है ना। जनरली स्टीम वगैरह कोरोजिव एटमॉस्फेयर तो होता ही है बॉयलर्स में, तो स्टेनलेस स्टील के रिवेट्स प्रेफर किए जाते हैं, है ना। कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम अलॉयज, ड्यूरेलुमिन, ये आईबीआर के रेगुलेशन के हिसाब से हैं। ST 37BR और ST 42BR, ये वाले जो रिवेट्स हैं, ये आईबीआर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से। तो बस एक जनरल आइडिया रखिए कि कोई पूछे रिवेट मटेरियल बताओ कुछ 2-3, तो इनमें से कोई भी 2-3 बता दिए, है ना, जस्ट टिप्स पे होना चाहिए। तो बस सिलेबस इज फिनिश, नाउ द टाइम ऑफ क्विज। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ट्रांसवर्स पिच इन द बॉयलर जॉइंट, मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? यस सर। Good. Good. Transverse pitch in boiler joint in case of zigzag riveting is kept. देखो, zigzag riveting है, boiler joint है, transverse pitch बतानी है। तो कितनी होती है transverse? 0.33p plus 0.67d. Yes. Option C is log, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 में से एक सही है, ऑब्जेक्टिव है ना। कुछ इस तरह के क्वेश्चनों से पाला पड़ेगा आपका अभी एग्जाम में। देखो, रोइंग बोट इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, आपने नाव वगैरह देखी है ना, हल हो गया, फॉर्मर्स यूज करते हैं, नाव वगैरह हो गई, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। इनको बनाने के लिए पुराने जमाने में क्या करते थे? ये मैंने बताया था, क्राफ्ट सिमुलेशन था, ये कोई ड्राइंग से नहीं बनते थे, सिंथेसिस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? क्राफ्टेबल। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्लेन कार्बन स्टील डिजिग्नेटेड बाय 40C8 मींस, क्या मतलब है इसका? 0.4% कार्बन, 0.8% मैंगनीज। ऑप्शन बताओ। नहीं सर, डी नहीं होगा सर, डी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। 40% कार्बन कैसे हो जाएगा? 0.4% होगा, बी होगा सर, बी होगा सर, ये सर बी होगा। 0.35 से 0.45 है, तो इसका एवरेज कर लो। 0.4% हो गया एवरेज, और इसका भी एवरेज कर लो 0.7 और 0.9 का, तो वो भी करीब 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो इट इज ओके। 40C8 का मतलब बी, सो ऑप्शन बी। बड़े ध्यान से करना, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं काफी, है ना। तो ये मैंने कुछ आपको ऑब्जेक्टिव का आइडिया दे दिया है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑकर्स ड्यू टू, बताइए इसमें क्या आएगा? ए होगा, ए अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। हाँ बोलिए सर। सी भी तो हो सकता है, ए और सी सब मल्टीपल चॉइस है। यस, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों होंगे। ध्यान से करिएगा, ए और सी, है ना। देखो, यदि चेक बॉक्स ना भी बने हो एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि ये मल्टीपल चॉइस है, कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम पेपर में जरूर लिखा होगा, सर मेंशन्ड होता है सर। हाँ होगा, मेंशन होगा वो। तो यदि एबीसीडी में चेक बॉक्स ना आके एबीसीडी भी आ जाए, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है या मल्टीपल चॉइस है। अगर सर ऑब्जेक्टिव होगा तो यही होगा ना इसका। ये ऑब्जेक्टिव में बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव में होगा तो मुझे सी ऑप्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह कोई और ऑप्शन लेना पड़ेगा। डी ऑप्शन ले सकते हैं ना, ए एंड सी। डी तो हो ही नहीं सकता है। और कभी कभी बॉक्स भी तो कम आते हैं, 3 ही आते हैं। हैं 3 बॉक्स आते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए 3 ही बॉक्स आते हैं। यस सर। सर ये आपकी 2 बार जगह मॉक 3 हुआ है, box दोनों बार में 3। हाँ, तो 3 में से सेलेक्ट करिएगा। 5 हो तो 5 में से करिएगा, है ना। हमने तो ज्यादातर 4 के हिसाब से ही रखा है ना। 4 हो, 3 हो, 5 हो, जैसा हो वैसा करिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसमें आंसर क्या हुआ फाइनली? ए एंड सी, एंड इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट,
स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑफर्स ड्यू टू, बताइए क्या आएगा? सर ए और ए और बी सर। सी, ए और और B? बी, यस सर, सी भी हो सकता है सर। इसमें देखो ब्लो होल्स की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता ही है, सीवेज की वजह से भी होता है, मशीनिंग तीनों- स्क्रैच जो हो जाते हैं उनकी वजह से भी होता है। So the तीनों- answer तीनों is A, B, C. It is a multiple select question. So the answer is A, B, C. अब 3 में से आप कोई एक लगाओगे और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 हम पॉइंट में कहां तक देते रहेंगे आपको, है ना? यदि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए, तब तो एक सही होने पे 1 मिल जाएगा, है ना? तो ध्यान से करिएगा, मतलब ये ओके। ये क्या है? You have been signed out because you are currently signed in another device. हमने तो नहीं किया है। बाहर क्यों हो गया? हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस सर, बट स्क्रीन नहीं है। हाँ, सुन, स्क्रीन हट गई है ना? केवल Yes. स्क्रीन। यस सर। हाँ, मैं समझ रहा आउट हो गया है। तो वापस शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग कर देता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ, दोबारा से शेयर आपने आज पढ़ाया उसमें से कुछ आएगा? ये तो मैंने जो जितना अब तक पढ़ाया उसमें से आएगा। जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उनमें से आएगा। तो देखो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। अब आइए एक और, ये आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चलिए इसका मतलब बताइए। डिजिग्नेशन M36 × 2। सर 36 नॉमिनल क्या मतलब है? डायमीटर होता है और 2 सर 36 पिच होती है। क्या है? नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर। और 2 क्या है? पिच। पिच। देखो दो तरह के डिजिग्नेशन होते हैं, एक M36 केवल और एक M36 × समथिंग, मान लो 2। तो ये वाला डिजिग्नेशन जो है वो है कोर्स थ्रेड का। कोर्स थ्रेड में पिच को दिखाया नहीं जाता है, केवल नॉमिनल डायमीटर शो होता है। और फाइन थ्रेड्स में पिच को दिखाया जाता है, दोनों चीजें दिखाई जाती हैं। वन इज नॉमिनल डायमीटर, वन इज। तो ये डिजिग्नेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, कोर्स थ्रेड को या फाइन थ्रेड को? ये फाइन कर रही है, ये फाइन थ्रेड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए यहाँ पे देखो मीट्रिक फाइन थ्रेड्स 36 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर, ये सही है। मीट्रिक फाइन थ्रेड्स 2 मिलीमीटर पिच, ये भी सही है। मीट्रिक थ्रेड्स 36 मिलीमीटर पिच, ये गलत है। 36 तो डायमीटर है, पिच नहीं है। मीट्रिक थ्रेड्स 36 कोर डायमीटर नहीं, नॉमिनल डायमीटर है। नॉमिनल। तो आंसर इज ए एंड बी। कुछ आइडिया लग गया आपको क्वेश्चंस का? पर कोर्स में पिच तो मैक्सिमम होती है, तब क्यों नहीं दिखाते हैं इसमें? फोर्थ और फिफ्थ क्या? कोर्स जो थ्रेड होता है उसमें पिच सर उसमें मैक्सिमम होती है। नहीं, एक उसकी फिक्स पिच होती है। देखो फाइन थ्रेड में तो M36 × 2, M36 × 1.75, M36 × 2.5, ऐसे डिफरेंट पिच होंगी, कई सारे डिजिग्नेशन मिलेंगे। लेकिन कोर्स थ्रेड में M36 का एक ही डिजिग्नेशन होगा और उसकी पिच फिक्स होगी। ठीक है, उसकी पिच वेरिएबल नहीं होती, इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड। ओके, चलिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखा दिए आपको। तो दिस एंड्स आवर न्यूमेरिकल्स का और बता दीजिए। न्यूमेरिकल्स का बता दें? चलिए एक मिनट, एक फाइल और शेयर कर रहा हूं अभी। आइडिया देने के लिए एक फाइल शेयर कर रहा हूं अभी आपसे। दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? यस बोलिए, दिख रहा है? यस विजुअल है स्क्रीन पे? वर्ड फाइल विजुअल है? यस सर। हाँ विजुअल है ना? बस बस बस, अब देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, A single riveted lap joint of two similar plates as shown in the figure given below। ठीक है, width of the plate W दे रखा है, thickness of the plate दे रखा है, number of the rivets दे रखा है, so and so data is given। अब इस डाटा के ऊपर क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है? If the plates are to be designed to avoid tearing failure, तो tearing strength क्या होती है? P - D × P sigma T रिवेट में।
तो मैक्सिमम परमिसिबल लोड P पूछा है, P इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। एरिया क्या हो गया P माइनस डी इंटू टी, और स्ट्रेस क्या हो गया सिग्मा टी। सारी डायमेंशन दे रखी है, वैल्यू सॉल्व करिए, निकालिए और आंसर को टिक करिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये कोई बेल्ट पे क्वेश्चन है ना? सर हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने क्वेश्चन दिखाया था स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, हाँ उसमें इलिप्टिकल वाला, इलिप्ट होल वाला। हाँ सर उसमें सॉल्यूशन नहीं, पीछे वाली स्लाइड में हाँ उसमें सॉल्यूशन था ए और बी मल्टी चॉइस में। हाँ 1 प्लस ए बाई बी। हाँ सर अच्छा अच्छा, आप उसको बोल रहे हैं, हाँ जिसमें मल्टी सेलेक्ट था। हाँ हाँ सर उसमें डी ऑप्शन दिया था नन का। हाँ ठीक है। सर एक क्वेश्चन ऐसे आया था मॉक में, उसमें क्या था, ऑप्शन दिए थे ए बी, और सर ए बी भी सही था लेकिन डी में दिया था बोथ ए एंड बी, और वो मल्टी चॉइस में आया था, तो उसमें क्या करें हम सर? तो दोनों में लगाओ। नहीं मतलब तो उसमें सर ये भी तो लगा है ही है और बोथ ए बी भी है, तीनों में तीनों में तो लगा तीनों में लगाया जाएगा ना फिर, तो ए बी और फिर सी में। ए भी है, बी भी है और ए बी भी है ना। मान लो 3 ऑप्शन ऐसे दिए, हाँ सर बी का भी टिक करो, बी का भी टिक करो, सी का भी टिक करो, ठीक सर। तीनों पर टिक करो ना। और नहीं बाई चांस अगर मैं बोथ ए एंड बी कर ले तो उसमें फिर गलत हो जाएगा ऊपर वाला। बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें आइडिया आप शेयर कर दीजिए देखो, सर। ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए आप, देखो ये गेट के भी क्वेश्चन है और ऐसे। अभी देखो स्टील बार ऑफ दिस M12 बोट्स, ये कैसा जॉइंट है बताइए? जॉइंट देख के कैसा वाला लग रहा है? रिवेटेड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक लोडिंग है कि नहीं? यस यस सर, है सर। हाँ, कितने बोल्ट हैं टोटल? दो 2 बोल्ट है ना। और क्या पूछा है? प्राइमरी और सेकेंडरी लोड। स्टील बार ऑफ 50 मिलीमीटर इज कैंटिलीवर्ड विथ 2 M12 बोल्ट्स। तो M12 मतलब डायमीटर तो दे रखा है 12 मिलीमीटर, बोल्ट का डायमीटर 12 मिलीमीटर दे रखा है, और 4 किलो न्यूटन का फोर्स है। अब 4 किलो न्यूटन के प्राइमरी शियर कितना कितना हो गया बताओ? 2 बोल्टों पे 2-2 किलो न्यूटन बढ़ जाएगा। यस 4 किलो न्यूटन का। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये देखो मैं जरा सा बता देता हूँ, लास्ट है बिल्कुल। ये देखो 2 बोल्ट यही बना देते हैं। इस वाले बोल्ट पे प्राइमरी शियर P1 डैश यानी कि 2 किलो न्यूटन हो गया, P1 डैश। इस पे P2 डैश ये भी 2 किलो न्यूटन हो गया। अब इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा ना, बीच में। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये R1 हो गया, R1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाया। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाया। तो बताओ कौन सा बोल्ट हेवीली लोडेड है, P या Q? देखो यहाँ तो अपोज कर रहे हैं, ये P1 डबल डैश, ये P2 डबल डैश। तो बोल्ट Q इज हेवीली लोडेड, बोल्ट Q इज हेवीली लोडेड, पता लग गया। अब P2 डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले कांस्टेंट निकालना, m बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। m कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी लोगे बताओ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक ये हो गई 1700, 1700 प्लस 100 1800, 1800 और 200 2000। तो इसेंट्रिसिटी 2000 हो जाएगी। फोर्स दे रखा है तो m निकल जाएगा। R1 कितना लोगे? 200, 400 का आधा, तो R1 200 और R2 भी 200। ठीक है, बस C निकल गया। C निकलते ही P1 डबल डैश आ जाएगा, CR2, और CR2 आते ही ये रिजल्ट टोटल लोड आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी शियर लोड्स ऑन दी बोल्ट P। P बोल्ट पे प्राइमरी फोर्स कितना है, सेकेंडरी फोर्स कितना है? तो प्राइमरी तो 2 किलो न्यूटन सही है। अब सेकेंडरी आप कैसे निकालोगे? CR1 से। C आपको पता है, R1 आपको पता है, मैच कर लेना, बड़ा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। और देखो गेट का क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में आया है? इट हैज कम इन ईयर लिखा सर होगा। ये फाइल आप शेयर कर दीजिएगा, सही रहेगा सर। शेयर कर दें आपको ये फाइल? यस सर। सर ये वाली फाइल शेयर कर सर कर शेयर कर दीजिए प्लीज। 2008 में आया ये, 2008 में। लेकिन आपको इसमें छांटने अरे शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गियर के भी क्वेश्चन है ना। यस सर, इतनी मेहनत कर लेंगे यस सर, वो सर हम देख लेंगे, आप शेयर कर दीजिए प्लीज। हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ये मेरी तरफ से मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज होप दिस सिलेबस इज कंप्लीट एंड आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस इज आल्सो कंप्लीट। वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर बोलिए।
मैं जरा सा वहां इस फाइल को वो कर देता हूँ स्टॉप से। हाँ अब बोलिए। सर डीसी इक्वल टू 1.6 डी, ये कौन सा रिलेशन? क्या इक्वल टू? डीसी इक्वल टू 1.6 डी। DC इक्वल टू 1.6 डी। नहीं, सर, एक 1.6 assignment- डी का तो कोई रिलेशन नहीं है, 0.8 डी का रिलेशन है। सर एक असाइनमेंट क्वेश्चन था प्रेशर वाला, उसमें यूज हो रहा था सर, ये मैंने सॉल्यूशन देखा। कौन सा वाला क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन नंबर 13 था सर। वेल्डेड जॉइंट का? नहीं सर, थ्रेडेड जॉइंट का, उसमें अभी बताया था सिलेंडर वाला आपने। थ्रेडेड जॉइंट का? हाँ हैं? यस सर। मैं शेयर करूं असाइनमेंट? यहाँ सर एक बार कर एक लीजिए। बार असाइनमेंट शेयर कर लेता हूँ। वेल्डेड एंड थ्रेडेड जॉइंट असाइनमेंट, डिजाइन ऑफ असाइनमेंट थ्रेडेड वेल्डेड। सर नेक्स्ट क्लास भी है सर, हैं? नेक्स्ट लेक्चर है सर। नेक्स्ट लेक्चर है? हाँ Yes, यस सर नेक्स्ट लेक्चर। चलो चलो, तो मैं इसका फिर जवाब दे दूंगा आपको Okay, sir. WhatsApp पे, है ना? कौन Yes, सा sir. क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए बस। 13? सर 13 यस सर। और सर 11 की वीडियो बना के, उसकी सर वीडियो अभी तक नहीं आई सर लेक्चर वाले की। कौन से वाले की? सर मैंने जो बोला था क्या बोला था तुमने? सर, याद है तो? टॉर्जनल वाला जो बेंडिंग लग रही थी उस पे, जो एक्स्ट्रा उसमें एक बट जुड़ रहा था सर, बेल्ट हो रहा था, अलग से सर्कुलर ये- शाफ्ट वाला था सर उसमें एक। हाँ, अरे वो तो मैंने संदीप को जूम पे बताया है। ये सर उसको Yes, sir. जूम का बताया था ना, तो आपने बोला था कि वीडियो में भेज दूंगा सर। अच्छा वीडियो हाँ, नहीं आई। वीडियो। वो संदीप है क्या क्लास में? संदीप क्लास में है क्या? सर वो रिकॉर्डिंग जब मीटिंग बनाई थी ना, तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन क्लिक नहीं किया था मैंने। अच्छा, क्लिक नहीं किया था तो इसलिए वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है ना? यस तो कोई बात नहीं, आई विल सेंड द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 11 11 सर। 11 और 13 दोनों के सोल्यूशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।